today we are going to have a discussion on STEM readiness among students, and the era in which we are living. Actually, STEM is everywhere and it is shaping our everyday experience, and it is really very essential to make our learner future if we want to give him a good life. So as the first slide is showing what STEM is, the examples are above the clip. What science is, what technology is, when what engineering and mathematics is. If we have taken a sun and using the science of sun, we developed a solar cell, and using engineering, we have developed car, and mathematics with all measurements, we are designing the vehicles. But imagine if we don't have engineering, what our kind of life is. If we do not have aeronautical engineers, we do not have civil engineers, if we don't have computer engineers, or we can say we don't have software engineers, what we are going to have life is, we have a very difficult life. uh, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर ये सब नहीं होता या जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने जीवन जिया है वो कैसा होगा. तो रियली STEM इज अ ब्लेसिंग. We do not know it was STEM, but we are using STEM from very, very ancient times. So what STEM is? टुडे अभी कुछ दिनों पहले ही अगस्त में चंद्रयान हमारा लॉन्च हुआ है. जस्ट बिकॉज ऑफ STEM ओनली वी हैव इंटीग्रेटिंग सो मेनी subjects, and we got Chandrayaan and successful launching of it on the moon. So it integrates so many subjects: science, technology, mathematics, innovation, engineering, and education knowledge. As I am not going to discuss more about it, you have been already attending all this kind of sessions. So what science is and what technology is, the important is we must know what science is, because it is a way of knowing at it, and it answers the question why. And technology is a way of doing and answers the question how. ये क्या और कैसे के बीच का जो हमारा हमें जो युद्ध है वो हम शुरू से करते आ रहे हैं, और उस क्या और कैसे के बीच की वजह से ही हम आज ये इतनी टेक्नोलॉजिकल टेक्नो फ्रेंडली लाइफ जी रहे हैं. इन एवरी फील्ड, चाहे आप मेडिसिन बोलिए, जो कोरोना से हम फाइट कर पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस technological innovations, or STEM. In every area we are working with STEM, and we are achieving something new, and still we are dreaming high. कुछ रोज नया आता है, and still we are dreaming high. Now we want the flying cars or the flying planes so that we can move individually on that cars. So we are working on that also. No doubt the dream is difficult, but we can't say we can achieve it anytime. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ से शुरू किया था? 2 पत्थर रगड़ के हम लाइट प्रोड्यूस कर रहे थे, और आज हम LED तक आ गए हैं. द पर्पस ऑफ STEM इज टू रिड्यूस, to reuse and recycle, how we can save our environment also, how we can reduce energy crisis which we are facing this year in all the areas. If you can say, जिस तरह से पहले फार्मिंग होती थी और अभी फार्मिंग हो रही है, the way has been totally changed. तो ये सब होता आ रहा है, लेकिन जो हमारा आज का बच्चा है, we need to think over it. For example, I have presented some areas in the area of agriculture. We are facing a very tough climate change, and accordingly we need to design and develop some tools which are helpful in our life, or we can make our life easier. Second one is STEM. We can create a cell phone. कैसे फोन हमने शुरू किया था, देखा था बड़ा बड़ा सा फोन, और अब हम आ गए हैं जितना छोटा और इतना क्या कहना चाहिए उसको, कि उसमें इतनी इंफॉर्मेशन हम एक साथ ले सकते हैं, स्टोरेज उसकी इतनी अच्छी है. तो वी कैन continuously working on all these technologies in all the areas, in all aspects, whether it is function and style, or design, games, or amusements, music and dance. If you can remember 30 years back or 40 years back, the movies are the dance or the music used in the movies, and nowadays dance or the music presented in the today's entertainment industry, totally different. Because of these innovations, tools have been developed, new equipments have been developed, and we are doing innovative day by day. टेक्निकल थिएटर, पहले पिक्चर्स कैसे बनती थी, अभी कैसे बन रही है, पहले ड्रामा कैसे होता था, अभी कैसे हो रहा है, कितने कम टाइम में हम चीजों को कर पा रहे हैं, और पहले कितना टाइम लगता था. तो ऐसा नहीं है,
कि पहले साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स नहीं थी, तो मैं कहूंगी आज का विज्ञान, कल की इंजीनियरिंग और कल की टेक्नोलॉजी, इसके बीच में जो अंतर है दैट वी मस्ट नो व्हाट टेक्नोलॉजी इज एंड व्हाट इंजीनियरिंग इज। इन दोनों के बीच का अंतर समझने की जरूरत है कि डिफरेंस क्या है। इंजीनियरिंग तो पहले भी थी, इंजीनियरिंग आज भी है, इंजीनियरिंग कल भी रहेगी। चेंज जो आया है वो है आइडियाज में चेंज आया है। वो आइडियाज पहले क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, उन आइडियाज को यूज करके हम डे बाय डे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। सो इट इज, अगर मैं कहूं एक छोटे सी भाषा में व्हाट टेक्नोलॉजी इज, तो टेक्नोलॉजी एक टूल है जिसे इंजीनियर यूज करके कुछ नया डिवाइस यूज कर बनाते हैं। और वो टूल पहले कुछ अलग तरीके से यूज होता था, फिर कुछ और डिवाइसेस आए, अब हमने नई टेक्निक यूज की और हम अभी कुछ और कर रहे हैं, और इस तरह से हम कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे जो आई इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बीच, तो आप सबको पता है कि अराउंड, इसको छोड़ के यहाँ पे शुरू करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आया वो आया इलेक्ट्रॉनिक्स के आने से। जब ये आया तो जो ये साइंटिस्ट पिक्चर्स दिख रही, इन सब ने इतना काम किया। 1874 में जब रेक्टिफायर आया और 1847 में सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशन आया वो आया ट्रांजिस्टर के आने से। क्योंकि उसके पहले वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करते थे, आपने देखा होगा, वी हैव अ वेरी बिग बिग टीवीज, बहुत बड़ी बड़ी टीवी जिसमें सीआरटी लगा होता था, वैक्यूम ट्यूब लगा होता था। उसके बाद एलसीडीज और ट्रांजिस्टर जब आया तो ट्रांजिस्टर ने बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंज लेके आया, और जिसकी वजह से आज हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी यूज कर रहे हैं, उसमें आईसी यूज करके हम बहुत ज्यादा एक रिवॉल्यूशनरी फेज में हैं। और डे बाय डे विद इन मंथ्स इसमें कई चेंजेस आते हैं। आप अभी कोई फोन लेने जाते हैं, कुछ दिनों बाद वही फोन आपका चेंज हो जाता है कि नहीं अब ये इसको और हमने मॉडिफाई कर लिया। तो रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ 1947 में, तो ये जितनी पिक्चर्स दिखाई दे रही, उस टाइम भी टेक्नोलॉजी थी, इंजीनियरिंग थी, लेकिन आइडियाज आते गए, रिसर्च होती गई, और जब वो रिसर्च आई तो उससे कुछ नया बना और हम यहां तक आ गए। तो अगर मैं इन साइंटिस्ट के पहले की बात करूं तो जो हमारे ऋषि मुनि थे वो तब भी स्टेम था। अगर मैं ये तीर धनुष का जो मैंने पिक्चर लगाया, क्या इसमें स्टेम नहीं है? आप देखिए इसमें भी स्टेम है कि क्या साइंस होगी, क्या मैथ्स होगा, क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है और क्या उसका डिजाइन होगा, उसको हमने बना के तीर धनुष का निर्माण किया था। तो स्टेम इज ऑलरेडी देयर। कैसे नदी पार करनी है, नो डाउट। अब ये जो ट्रांजिस्टर और ये इतना रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नहीं थे, लेकिन आइडियाज वर देयर एंड वी हैव developing to solve the problems. Actually what STEM is, STEM is the approach which provides solution to the problems which we are facing in our daily lives. तो शुरू से ये चला आ रहा है, लेकिन जब STEM की बात आई तो हमने कहा कि STEM को क्यों ना एज अ पेडागोजिकल अप्रोच लिया जाए। When we are talking about pedagogical approach, it means we need to use STEM in our classroom in a way such that a student can get the opportunity to explore and experience. If we will provide experience to our learners, they can learn in a way, they can have a good conceptual understanding and good learning environment among themselves. So what STEM is? Before starting STEM, I request all of you to watch one video so that I can ask you one question. Please let me know if video is visible to all of you. Is it visible? Yes, ma'am. It's a 3-minute video, short video. I request all of you, and no language. Please just watch. Яамаа хитээ харин алтан ноёмдоо эдэн атуугаад чаа зөв дүүрэн буцаа утсан дээр ба
Minimally, human. Okay. Can anyone interpret the video in terms of education? Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Please interpret the video in terms of education. What you have seen in this video? क्या लगा आपको ये वीडियो देख के? क्या किया उसमें? क्या हुआ है इसमें? Effort, very nice. Please write more. The first step, what is the first step? Due to combined efforts, very good. और कुछ? Initiative, very nice. Yes. और? Problem solving, problem diagnosed. The persons are the teachers. Okay, just make an analogy. The four peoples are the teachers. The horse stuck in the mud is the student. And all the other horses we came across to support him or the cooperate him is the strategy, right? That strategy is designed by the teachers, peer support. So what this video is giving the message is we have to work in team. We have to take all the learners together. If someone is a slow learner, we have to help him, support him to move ahead along with all the learners. And here the strategy, what they have used, collaborative effort, peer effort. In the classroom, what we have to use, whatever you are writing, all are the components of STEM. Actually, we will see the critical thinking, collaboration, efforts, it is all are the components of STEM. That's why we have shown this video how we have to look at the situation, what are its steps,
पहले प्रॉब्लम्स देखी, प्रॉब्लम के लिए उन्होंने व्हाट दे हैव डिस्कस्ड एंड प्लान्ड अबाउट द इशू कि क्या करना है, एंड देन दे इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी and it becomes helpful for the horse or the student to come out of the problem. Okay, now we come to our PPT now. Is it visible, right? Yes, ma'am. So what we can say, STEM is an approach to learning and development that integrates all the 4 areas, and through STEMs we can develop key skills: communication, collaboration, critical thinking and problem solving, creativity and innovation, imagination, teamwork, independent thinking, initiative, persistent and resilience. Many of you have answered this skills, how we can use STEM in the classroom. If we know of the components of it, definitely we can implement it in the classroom. So we can say STEM education fosters curiosity in students, encouraging them to explore, experiment, and solve problems. Actually, इसके बारे में बात नहीं करते. You have already been discussed what STEM is. I'm not going to take it much, but as I'm supposing you all have been knowing all these things, I can start directly to my activities which we have been conducting at our institute and others institutes. With the help, we have been collaborating with Curtin University Australia and Crivet South Korea. With Curtin University, we have been working in STEM only, and we have designed some activities with them for our students and implement those activities at school level and at also higher education. TPAC framework, we already know what TPAC framework is and how we can integrate it in the classroom. We must know, we must have command on the content, and to deliver that content into the classroom, we must know what pedagogical strategies we have to use in the classroom, and how and what technology to be used for that strategy to make our content effective. So TPEC framework for STEM learning environment, it needs identifying the learning goals, analyze the curriculum, assess the existing knowledge and skills of the learner, choose appropriate pedagogical strategies, select appropriate technologies, combine content, pedagogical and technological knowledge, collaborate with other teachers, develop lesson plans, evaluate the effectiveness of the plans, assess and reflect on learning outcomes. Those who are working on STEM, they have to follow these steps. If you are not achieving the goal, again, you have to take feedback and restart from the scratch. So these are the 4 pillars. They are really very important if we want to remove the barriers between these 4 disciplines by integrating these subjects into a cohesive curriculum. And STEM provides fun learning, so they prepare our learners for leading a good life, to think critically and to solve problems. So we need to provide opportunity to them to play, learn and grow together. So we can say, if we cannot able to provide them opportunity to participate, to actively participate in the classroom and involve in some activities, we will substantially fail if we will not able to think children, provide opportunity to think critically and solve ill-structured problems. The critical part of the STEM is we all are teachers and we are working in the factory model of education, actually with chalk and board only. Some of us or many of us are trying to give them opportunity to learn them with the help of STEM, but increase science and math capability is not enough. अगर हम सोचें कि हमने कह दिया कि मैथ्स और साइंस में उन्हें बहुत अच्छा बना दिया है तो बहुत सब कुछ हो गया, no. We have to move ahead towards broadcast model of education. That is, we need to provide experiences which are centered on design, innovation, engineering and technology, which helps them to increase creativity, inventiveness, ingenuity and imagination capabilities. Then only we will be successful. And no doubt it is a tough task, because for that we need to involve. We want our student or the learner to involve, but
For that, first we need to involve, then only we will be able to involve our learners. So it's a time to shift from factory model towards the broadcast model of education. We need to develop such kind of curricula which involve students. Actually, I can say involve students in the sense we have lots of things in our brain. हमें सब कुछ theoretically आता है, but our hands are poor. We are not a skilled person, and STEM gives that opportunity to develop skill among us and among learners. So that's why I am saying first we need to involve, then only we will be able to involve our students. And we need to use such techniques which are not expensive and it will be accessible by all. The connecting, we have to develop, no doubt, literature accordingly, and we have to implement STEM in the classroom. Design thinking process, as madam has been told, it has been already been discussed in earlier classes. Design thinking process, again, I can say it's a problem solving approach which has 5 steps: empathize, define, ideate, prototype, and test. I can say empathize and define means we are giving opportunity to our learners to explore. Ideate and prototype means, and test and fear test gives to implement. Huh. Empathize and define means to understand the process, then to explore, and then implement. So benefits of design thinking has also been discussed. If we are providing them problem solving opportunities, they will be able to understand, explore, and implement. So what we need in schools? I will just first go to the activity. What we need to do in schools, I want to show you first. Wait a minute, torch kahan gaya? See, this is a very simple experiment which we have designed. This is not the component which we have done with the Curtin University. Those activities are different. I am showing you how STEM can be initiated in the classroom, what we have to do in schools. We have to start with a very simple activities. See, this is just a 9-volt battery, 2 torch, and a switch and connecting wires. I have just put it on. See, the torch made by one of my student of class 6, 7th, and 8th. I have given this parts, spare parts, in groups, in 7 groups of the class. They have designed it in a different way. What we have done, we have not told them how to develop it. What we did, we have shown a video to our students. We are just the facilitator to them, and watching that video they have developed this small circuit. How to use, how to develop this. इसमें साइंस भी है, इंजीनियरिंग भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और मैथमेटिक्स भी. और हर बच्चे ने अपना डिजाइन बनाया, हर बच्चे ने अपना आइडिया लगाया, उसको कैसे शेप दे. तो आई एम हैविंग 7 मॉडल्स ऑफ दिस. कोई कुछ इधर लगा रहा है, कोई इधर कर रहा है, इसके ऊपर कुछ सजा रहा है. तो आई हैव गिवन दैट फ्रीडम. करना क्या है, एक और मैं आपको दिखाती हूँ. छोटा एक्टिविटी है, लेकिन हमें इनिशिएट रेडीनेस कहाँ से लेके आनी है. स्कूल लेवल से जब हम स्टार्ट करेंगे रेडीनेस, तब वो कॉलेज लेवल तक जाएगी. तो हमने ये, मैं आपको सेकेंडरी का दिखा रही हूँ बिकॉज आई एम प्रेजेंटिंग फ्रॉम होम. इफ आई वॉज इन कॉलेज, आई विल शो यू. आई हैव द पिक्चर्स इन द पीपीटी what our students have developed. The second is very small again. In this we have used, this is for actually, wait a minute. हाँ, पीपीटी इज नॉट विजिबल, राइट. आई एम, आपको आवाज आ रही होगी. आई एम प्रेजेंटिंग सब दिस. देखो, दिस इज फॉर सम ब्लाइंड पर्सन. दे कैन यूज दिस एज अ ऑब्स्टिकल, कि अगर ऑब्स्टिकल है तो ये बजेगा. देखिए, अगर इसके सामने कुछ आएगा, आपको आवाज आएगी. अगर आप इसके बीच में कुछ भी ऑब्स्टिकल लेके आएंगे तो ये बजेगा. इट मीन्स उसको पता चलेगा, देखिए ऑब्स्टिकल है, बजेगा. तो अगर ये ऑब्स्टिकल है
किसी ब्लाइंड के हमने उसको हाथ में दिया है तो वो रुक जाएगा, उसको समझ में आएगा। तो एक छोटा सा हमने एक टेक्नोलॉजी यूज करके एक सेंसर लगा के बनाया है इसमें कि कैसे यूज करें हम इसको। दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो कैसे हम इसको यूज करें और ये कर सकते हैं। ये भी बच्चों ने बनाया है, उनको हमने फिर वीडियो दिखाया, उसका कॉन्सेप्ट समझाया और इसको आगे हम बच्चों से बनवाते गए। उनसे जो सोल्डरिंग कराई गई है ग्लू गन से, ये क्लास 8 ने बनाया है। इसके पहले जो छोटा वाला मैंने दिखाया था टॉर्च वाला, वो क्लास 6 ने बनाया था। तो इस तरह से हम क्लास वाइज उन्हें अलग अलग, उनका एक स्टेम की क्लास होती है, उसमें आप बच्चों को ये सिखाते हैं हम लोग। एक पीरियड होता है स्टेम का, अटल टिंकरिंग लैब अगर आपने सुना है, उसमें बच्चे ये बनाते हैं, वीडियो देख के बनाते हैं, फिर उसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं एंड दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन बाय देमसेल्फ। दिस इज बाय क्लास 8। वन मोर आई एम टेलिंग, दिखाती हूँ, फिर बाद में बाकी दिखाऊंगी। दिस इज वन फैन, सी वर्किंग ऑफ 9-volt battery, again switch, one fan and motor. Actually, madam has given me this online opportunity. If it was offline, I will bring all this spare parts and ask you to prepare all these things. Okay, that's why I'm showing the prepared one which we have. This is for this is has been prepared by class 7th students. So I have showing you class wise. Class 6th has made torch, class 7th has made this fan, and class 8th has made that using sensor, the obstacle कि कैसे वो उसको identify करके वो sensor उसको sound करेगा. This is how we are step by step we are doing. Actually, this is one of the research project in which we have done the effectiveness of the STEM on school students. So that's why we are developing, we have creating or giving opportunity to students. ये हो गया। मैं आपको पहले सारे दिखा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे जिसके बारे में मुझे, फिर मैं आपको कुछ आईसीटी के दिखाऊंगी। हाँ, एक और छोटा सा है, ये जितना भी मैं आपको दिखा रही हूँ इन सब के वीडियोस अवेलेबल है। एक्चुअली स्टेम को जब हमें यूज करना है क्लासरूम में तो हमें उनके साथ होना है और उनको खुद से करने का मौका देना है। एक मिनट, सी मोटर कैसे काम करती है। एक सेल है, दो सेफ्टी पिंस लिया हुआ है, कॉइल हमने जो बना ली है छोटे वायर से, और ये मैग्नेट हमने यूज किए हैं, पेंसिल मैग्नेट्स। आप इसको हटाएंगे, प्लीज कीप डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा। ओके, थोड़ा दूर रखूं सिस्टम को, आई विल ट्राई। ये भी क्लास 7 का है। So there are once in a week we are having 2 sessions in school. We are taking that, and we are having one maker space lab, and Mr. Sandeep Ratnere is working with us in this field. So we are conducting every week such kind of activities with them and taking their feedback. Okay, this is one of the activity, and हाँ, एक है ये, sorry, see this is a magnetic levitation on which, ये जितना भी बनाया है मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगी। मैं पहले दिखा दे रही हूँ कि ये सब करके हम उन्हें कैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से जोड़ते हैं। ये एक है, ये दिस इज द पेन, पेन में हमने मैग्नेट लगाए और एक तरफ ये फैन लगा दिया। मैग्नेटिक लेविटेशन जो बुलेट ट्रेन काम करती है
वो कैसे काम करती है, ये हम उसको लेविट करके, ये जो जस्ट इसका जो नीडल है यहाँ पे इसमें डॉट्स बने हुए हैं, इसको मैं पहले फंसाती हूँ रख के, क्योंकि it's very मैम difficult। कैमरा से थोड़ा अगर आपकी डिस्टेंस ज्यादा रहेगी तो मॉडल क्लियर दिखाई देगा, वो असल में क्लियर दिख नहीं रहा है। और दूर करूं सर? हाँ जी। बस इससे दूर नहीं पकड़ पाऊंगी सर। ठीक ठीक है, ओके। ठीक है, देखिए ये जो है एक्चुअली इसको उठा ले है ना तो गिर जा रहा है। तो ये जो पेन है ये इसमें लेविटेट करेगा, हवा में रहेगा, तो ये डीमैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल है। इसमें जो मैग्नेट है और इसमें जो मैग्नेट है वो अपोजिट पोल्स के हैं, और जब हम इसको इसमें लगाएंगे, वो हाथ में पकड़ा हुआ है ना तो वो लेविटेट करना मुश्किल हो रहा है उसको। मैं तो एक मिनट, अब दिख जाए शायद। दिख रहा है सर अभी? दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये लेविटेट कर रहा है मैग्नेट्स के बीच में, अट्रैक्ट, ये गिर गया, नहीं कर रहा। तो पर्पस ये है कि किस तरह से वी कैन गिव अपॉर्चुनिटी। ये बच्चों ने वीडियो देख के ही बनाया है, हम उनके साथ रहते हैं और उसको कॉन्सेप्ट उनको समझाना होता है। ये बनाया है क्लास 9th ने, तो इस तरह से हम ऊपर ऊपर गए और हम बनाते गए। अब इसके बाद जब हम आते हैं, हम रोबोटिक्स में आते हैं। ये हो गया मैग्नेटिक लेविटेशन। हमारे पास 3D प्रिंटर है, बच्चों ने ये गणेश जी बनाए हैं उससे। ये एक पाव बनाया है, पाव की फंक्शनिंग कैसे होगी पूरी प्रोग्रामिंग के साथ, इसमें नो डाउट हमारे संदीप रत्नेरे जी उनको हेल्प करते हैं कैसे बनेगा। ये गियर बनाया है, तो ये सब हमारी लैब में ही बने हैं 3D प्रिंटर से, क्योंकि यहाँ पे लेके दिखाना पॉसिबल नहीं था, तो ये मैं सिर्फ लेके आई हूँ कि ये सब हमारी लैब में बना है। और ये है एक रोबोटिक हैंड, ये क्लास 5th के बच्चों से बनवाया है। 5th में भी हमने स्टार्ट किया था, 5th से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए इसमें स्ट्रॉस को यूज करके हमने, अगर हम इसे करें तो कैसे काम करता है हाथ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये आप सारी उंगलियां कैसे काम करेगी रियल वर्ल्ड में, फिर ये कहाँ होगा। ये मैंने इसका पूरा एक लिया हुआ है कि जब हम इस पे काम कर रहे थे डेवलपमेंट पे, तो हमने इसका पूरा मॉड्यूल भी बनाया हुआ है। तो कैसे काम करता है, क्या स्टेप्स हैं उसकी, वो सब मैंने स्लाइड में ले लिए, मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, ये इतनी एक्टिविटीज तो ये हैं, मैंने दिखा दी है जितनी मैं लेके आ पाई थी घर वहां से। तो ये हो गई एक्टिविटीज। तो जब ये बच्चा करता है, एक्चुअली जैसे अभी हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, being human being, physically we are present, some are thinking something else, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सब मुझे सुन रहे हो या ध्यान हो सबका, क्योंकि हम बैठे तो साथ में है, लेकिन मेंटली कितना बैठे दैट आई डू नॉट नो। लेकिन अगर ये मैं ऑफलाइन करती और ये वहां ये सब लेके आती, तो ये इवन इन द क्लास इट हैपेंस, इफ आई एम गिविंग अ लेक्चर एंड यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, what happens again, you are physically present but mentally how many of you are present, I can't say that, because we don't have one light on our head, green or red, ki those who are listening to me they are blinking with green and those who are not listening they are blinking with red. So what we have to do, same case happens with the students. We have to give them some kind of activities in which they involve. जहां मैंने उन्हें ग्रुप में एक्टिविटीज दी, जब हम ये कर रहे थे, चाहे वो 5th में कर रहे हो, 9th में कर रहे हो, 11th तक हम गए हैं, 12th एक्चुअली अभी हमने नहीं छुआ है, बोर्ड क्लासेस होती है एंड दे आर बिजी विद देयर कोचिंग क्लासेस, तो हम 11th तक रोबोटिक्स पे लाके उसको खत्म कर देते हैं, बिकॉज वी हैव मेकाट्रॉनिक्स इन आवर स्कूल एंड गुड मेकाट्रॉनिक्स लैब in collaboration with Crivet, South Korea. तो we are having a good lab actually. तो they are सीख रहे हैं बच्चे वहां पे सब। अब क्या होता है जब हम ये करते हैं, तो बच्चे को जैसे ही मैंने ये छोटी छोटी चीजें दी, वो सब मेंटली भी इन्वॉल्व हो गए कि करना क्या है आगे, इसके बाद क्या आएगा, क्या बनेगा। किसी का कोई उंगली नहीं मुड़ रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है, तो कैसे कट करना है, कहाँ पे क्या करना है, धागा कैसे उसमें जाएगा। तो एक्चुअली दे हैव फन एक्चुअली इन लर्निंग दिस। तो साइंस भी आ गई, मैथमेटिक्स भी आ गई, टेक्नोलॉजी भी आ गई, किसी ने किसी डिजाइन का टेक्नोलॉजी, ये हमने टेक्नोलॉजी दी। इंजीनियरिंग भी आ गई, डिजाइन क्या करना है, कैसे करना है। तो दीज आर द एक्टिविटीज। अब मैं इसमें आपको एक और चीज बताऊंगी। ये तो हो गया इनएक्सपेंसिव जो हम कर रहे हैं, और जैसे मैं कहूँ एक सॉफ्टवेयर है, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन,
क्योंकि प्रेजेंटेशन में वही सब लिखा है जो बात होगी। मेरा जो मेन था कि कैसे रेडीनेस लेके आनी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज मैडम एट 10:30 मैडम विल से मैडम अब टाइम खत्म हो गया, तो इट इज बेटर टू शो एक्टिविटीज फर्स्ट व्हाट एवर आई नो। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाती हूँ जो क्लास 11th के लिए है या 10th के लिए भी कह सकते हैं हम। तो यस, बट हमें खरीदना नहीं है ना मैडम, वी हैव टू परचेज स्पेयर पार्ट्स ओनली। हमें इन्वॉल्व, खरीदा हुआ तो आप दिखा देंगे तो कुछ नहीं होगा ना। इट इज बेटर डोंट टेल स्टूडेंट्स टू परचेज, जस्ट इन्वॉल्व देम बाय प्रोवाइडिंग दीज थिंग्स। हमें उनको इन्वॉल्व करना है, सिखाना है कैसे जुड़ता है, क्या एंगल होगा, कैसे होगा। अभी क्योंकि मेरे पास वो एक्टिविटीज नहीं है कर्टेन यूनिवर्सिटी की, उसका मैं आपको फोटोज दिखा दूंगी। और अभी जो मैं एक सॉफ्टवेयर दिखा रही हूँ दैट इज नेट लोगो सॉफ्टवेयर, मे बी मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट, कि हाउ वी कैन यूज, लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट, entire screen. Yes, startups are there. Atal Tinkering Lab. You see, we have Atal Tinkering Lab at our DM school, Bhopal. That is also जो मैंने पहले starting में दिखाए. Those are the items which has been developed in Atal Tinkering Lab. Now my screen is visible. Yes, ma'am. हाँ, ठीक. This is the Net Logo software. Net Logo 6.0.3. With this software, I have conducted one research on class 11 students regarding the conceptual understanding of thermodynamical variables, that is pressure, temperature, and volumes. It's a free open software. I have downloaded it. File में गए आप, file में model library. And then connected chemistry, number and pressure. This is how it appears. Okay. We have to see what happens when gas molecules increases to the pressure. Even this software is very helpful in visualizing the molecules and the behavior of gas. Actually, in lab, even if you have some experiments, we are not able to what happens to the molecules, how they are behaving. This software provides opportunity to visualize the gas molecules in a way we are seeing the movie like that. And you all know we learn more when we have multisensory learning. जब हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो हमें वो लर्निंग ज्यादा टाइम तक याद रहती है, and we all agree with that. तो see setup, then go. I will change the color of the molecules, red, green, blue. Now ask the students what is happening. This is the container in which gas is filled, and two parameters we have to analyze, that is the number of the gas and what happens to the pressure if we increase the number of molecules. Here it is initial number 50. We can add particles. So for example, I am adding particle 50. You can make it 10, 20. So I asked the students as per your आपको जो मन हो रहा है आप करिए. So somebody took 10, somebody took 20, and the important feature of this software is it helps in developing graphical skills. I studied the graphical skills among students with the help of this and understanding of the thermodynamical variables. It's a 15-day implementation program in class 11. And see, if I'm adding the particles, what happens with the increase in the number of molecules, pressure increases, and what happened? मैम ये सॉफ्टवेयर ओपन एक्सेस है कि ओपन एक्सेस है सर, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें आप स्पीड भी देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स की कि ग्रीन की क्या है, ब्लू की क्या है, रेड की क्या है. रेड की सबसे ज्यादा है, ग्रीन की थोड़ी कम है, ब्लू की और कम है. और जब वो टकरा रहे हैं आपस में तो ग्रीन रेड भी हो रहे हैं. व्हाट ऑब्जर्वेशंस आवर स्टूडेंट्स आर गिविंग. तो ये सॉफ्टवेयर इजीली अवेलेबल है. आप नेट लोगो 6.0.3 डालेंगे, आपको आ जाएगा. आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और ये 5 मिनट में मोबाइल पे भी चल जाता है. ठीक है, ये हो गया. ये तो मैंने सिंपल एक नंबर और प्रेशर का बताया.
तो जो हम क्लास 11th में भी बच्चा किताब से पढ़ के नहीं समझ पा रहा था, उसको जब विजुअलाइज कराया तो वो टिप्स पे आंसर थे उसके, 15 दिन बाद भी जब हम उससे बात कर रहे थे। अगर हम इसका दूसरा देखें, मैं थोड़ा जल्दी में दिखा देती हूँ। ये है टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम वैसे ही फाइल में जाएंगे, मॉडल लाइब्रेरी में जाके, कनेक्टेड केमिस्ट्री में जाके जो आपको चाहिए वो आप करेंगे। हम गए इसमें, आप देखिए जहां टेम्परेचर की बात आएगी तो वी कैन इवन रेज द टेम्परेचर, वी कैन इवन डिक्रीज द टेम्परेचर। सेटअप, वार्म अप द वॉल्स, अगर मैं अभी कह रही हूँ मैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रही हूँ, सेटअप के बाद गो, कलर चेंज कर लेते हैं। वन कलर से क्या होता है, थोड़ा हमें देखने में ठीक लगता है। ये वार्म अप किया, नाउ इंक्रीज द टेम्परेचर, जितना इंक्रीज हो सकता है हमने कर दिया। And what happens with increase in temperature? What happens to the pressure actually? With the increase in temperature, the pressure of the gas increases. So what we ask students to draw the graph by taking the readings. If we keep the cursor on the curve, you will see what are the readings. So we have been asked them to draw the graph between the temperature and the pressure. So with the increase in temperature, pressure increases. And now cool down the walls. हम हमेशा बात करते हैं जीरो केल्विन की, क्या बिहेवियर होता है जीरो केल्विन पे, हम हमेशा याद ही करते रह जाते हैं। अब इसमें मैंने उसको जीरो केल्विन तक पहुंचा दिया कूल डाउन करके, ये हो गया जीरो केल्विन और -273 सेल्सियस। व्हाट हैपेंस टू द गैस? तो दोनों ग्राफ इसमें आ गए, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर। क्योंकि हम साइंस, ये स्टेम का पार्ट है, वाई साइंस भी पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है और इंजीनियरिंग यूज करके ये सॉफ्टवेयर बनाया है, हमारा डिवाइस बनाया है, और मैथमेटिक्स इसमें ऑलरेडी है, ग्राफिकल स्किल्स हमारी है। तो इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम हमेशा कुछ डेवलप करना ही नहीं, उससे हमें सीखना भी है। तो स्टेम हमने यूज करके बच्चे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी। आप देखेंगे जैसे ही वो जीरो की तरफ जा रहे हैं गैस टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल स्लो हो गए हैं और ग्राफ जीरो की तरफ आ रहा है। एक और, क्योंकि तीसरा वेरिएबल है वॉल्यूम, हमने प्रेशर की बात कर ली, टेम्परेचर की बात कर ली, द थर्ड वेरिएबल इज वॉल्यूम। तो तीसरा है हमारा वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम प्रेशर बात की मतलब अभी तक जो कंटेनर हमारा फिक्स्ड वॉल्यूम का था उसको हम चेंज कर सकते हैं। सेटअप, गो। Now what happens if we move the wall? Click on the move wall, keep the cursor here, volume gets changed, again go. Now what students will interpret? With the increase in volume, pressure decreases. Again move wall, go. With the increase in volume, pressure gets decreases. हमने 2-2 दिन या 3 दिन रखा और जिस बच्चे को जितना टाइम लगा उसे उतना टाइम दिया, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बिकॉज इफ ही विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंड देन वी फर्दर मूव फॉर डेरिवेशन एंड अदर टॉपिक्स, they have clarity what we are deriving and why we are deriving and what is the reason behind that. And the last one, when all have to look together, that is pressure, temperature and volume. This is for pressure, temperature and volume. Everything is there, set up and go. It's in your hand. If you want to keep the volume fixed, you can keep the volume fixed. You want to increase the temperature, what happens to the volume? Volume will remain same. If temperature, pressure change, cool walls, you will change again the temperature. What will happen? And if you want to change the move wall, you just move wall. What happens to it? Go. So you can derive even Boyle's law with the help of this tool, which one is proportional to which one, and they will be able to show Boyle's law, what Boyle's law is. And they will be able to draw graph. I don't
actually got the pictures of that. Otherwise, I will put the pictures of how students did that and how we have developed the questionnaire. And in that, they have performed really very well after in post test actually. So this is one of the software which I have shown you. Let it stop now. इसमें और भी बहुत सारा है, यू कैन गो थ्रू दैट. आपको जो अच्छा लगे, जैसा लगे, आप उसको यूज कर सकते हैं. एक और सॉफ्टवेयर है टिंकर कैड, आपने यूज किया होगा वो. एक्चुअली आई एम यूजिंग द माय वन ऑफ माय रिलेटिव्स लैपटॉप. My laptop is not working. Its audio is not working actually. And that Tinkercad, please note down if anyone is from physics. Tinkercad is the software. Those who are not having labs in their schools, or those who are not having electronics equipments in their schools, they can perform. Yes, tinkercad.com, please use that, download it, and perform all the experiments related with diode and transistors or amplifiers, whatever, on the breadboard जैसा आप लैब में परफॉर्म कराते हैं. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, don't purchase kits in your labs. Use breadboard and these spare items to perform the practical, so that they can be able to connect the circuit by their own. Otherwise abhi jo kit aate hai, what we are doing, on kiya, we are taking readings, note down the readings and drawing the graph, that's it. Our students are not able to make the circuit by their own. तो उन्हें अगर सिखाना है, actually what we do in Regional Institute of Education Bhopal is that only we are not giving them these kits, we are giving them this breadboard or the online softwares, और बहुत सारे जो हम कहते हैं ऑर्डिनो के थ्रू हम करवाते हैं. तो इस तरह से उनको इन्वॉल्व करना है, टेक्नो फ्रेंडली बनाना है, तो हमें वो उन किट्स से हटना पड़ेगा जो रेडीमेड किट्स आती हैं. उनको इन्वॉल्व करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में. हम चाहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग उनमें डेवलप हो, साइंटिफिक एटीट्यूड उनमें डेवलप हो. तो हमें उनको इस तरह से रॉ आइटम्स दे के काम करवाना होगा. इवन द टीचर्स हु आर कमिंग फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग टू अस, वी आर गिविंग देम दिस रॉ आइटम्स एंड वी आर कंडक्टिंग दीज experiments with them. Now I am coming to my PPT, as only 10 minutes have been left. I want to share those activities. You can, if you want to take some extra time, you can take, because our next resource person is presently unavailable. So we have some more time. So what we can do now, I'm just first showing them those activities, then I will go through the PPT. Okay? Okay, ma'am. जो हमारा हमने किया है, see, this is the one of the activity which I have shown is the robotic hand. This is for class 5th. So what we did, we have made the list of items which we have to give them, and all items are easily available in the market. And I have given the link also. If you want to see, this link is working. We have shown this video, actually 2 videos we have shown them कि इससे आपको करना है. अगर आप इसको देखेंगे, अगर हम इसे नेट पे डाल के देखें, चलना तो चाहिए. तो हमने ये वीडियो उनको दिखाया. ये देखिए, ये है. और यही एक्टिविटी मैंने जब इन सर्विस टीचर्स को दी, उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगा. एंड आई कैन टेल यू, स्टूडेंट्स आर मच फास्टर देन अस. दिस अ 4-minute वीडियो, हाउ टू डेवलप इट, हाउ टू मेक इट. ये बच्चों को बार बार दिखाया जहां भी उन्हें दिक्कत हो रही थी, और कैसे बनाना है, क्या करना है, इसको देख के उन्होंने इसको बनाया है. तो 2 वीडियोस है, ये अगला ये वाला लगा हुआ है. ये दोनों वीडियोस कैसे क्या करके, कैसे स्ट्रॉ को कट करके लगाया, ये सब हमने इसमें किया. ठीक है, तो ऐसे वीडियोस हमने दिखाए हैं. दिस इज वन ऑफ द मॉड्यूल विच वी हैव डेवलप्ड, one book form में, in which all the activities we have been recording.
अब जब उन्होंने बना लिया, ये हैंड बना लिया, इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पे वो यूज होगा, तो रोबोटिक्स किस तरह से काम करते हैं, रोबोट्स जो बनते हैं वो कैसे काम करते हैं, वहां से हमने उसको जोड़ा कि रोबोट्स के हाथ इस तरह से हम काम करवा सकते हैं। दिस इज फॉर क्लास 11th। दिस इज आवर मेकर स्पेस लैब एंड दिस इज आवर स्कूल स्टूडेंट्स जिन्होंने मैं गाड़ी आपको बनाई थोड़ा है। रोकना चाहूंगा इसमें। हाँ जी बोलिए। होना क्या चाहिए कि हम ये तो देख रहे हैं, उसको विजुलाइज तो कर रहे हैं कि ऐसे हाँ। रोबोट का हाथ चल रहा है, लेकिन उसको मैथमेटिकली कैसे कंट्रोल हो रहा है वो इक्वेशंस भी कहीं उसको बताना चाहिए कि देखिए ये टर्म्स हैं और उसका जो ऑप्टिमल कंट्रोल है वो इस तरीके से होता है। मतलब वो सिंबल्स में दोनों चीजें कोरिलेट करेंगे, थियरी और आपका जो प्रैक्टिकल है, तभी उसको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बिल्कुल सर, लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि ये हमने क्लास 5 के लिए बनाया, तो उनका मेंटल लेवल को देखते हुए हमने उसको खेल खेल में एक चीज सिखाई जिसकी थ्योरी के बारे में हमने नहीं सोचा। हमने ये सोचा कि वो बना पा रहा है या नहीं, और जब हम आगे वो जाएगा तो उसकी थ्योरी हम लेके जाएंगे आगे। तो इसी को फिर हम जब आगे एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे पूरा आता है। क्लास 11th में जो सर है, ये जो बीच में जो खड़े हैं, ये संदीप सर है, ये कुलशेष सर है, ये पूरा इनको एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट, व्हाट इज द मैथमेटिक्स बिहाइंड। एक्चुअली खेल खेल में जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसको इन्वॉल्व करना पहले जरूरी है। इसलिए हमने उसको कुछ नहीं बताया था क्लास 5th में, सिंपली उसको बनाने के लिए कहा कि इसको ट्राई करो, कहाँ पे कितना कट करना है, कैसे करना है। जब पूरा बन गया तो हमने उसको थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए कि ये कैसे काम करता है, तो उसको उस चीज से जोड़ने के लिए वी स्टार्टेड लाइक दैट, वी इनिशिएटेड अवर क्लासरूम लाइक दैट। क्योंकि टफ बनाना हमारा अभी काम नहीं है, उसको उससे जोड़ना, जो क्लास 5 की मैं आपसे बात कर रही, ये मैंने क्लास 5 में किया था। हाँ, क्लास 5 के लिए तो हाँ, मैं इसलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत छोटी क्लास। अभी जो आप देख रहे हैं इसमें क्लास 11th के बच्चे हैं। हाँ, इसमें क्लास 7th के बच्चे हैं। इन्होंने ये पूरा खुद बनाया है अंडर द गाइडेंस ऑफ दो, ये जो 3 हमारी टीम है, इसमें ये पीछे जो 2 सर हैं, ये संदीप जी हैं, ये वंजारी जी हैं, ये इस पे पूरा काम करते हैं, कैसे बच्चों को क्या बताना है, ये पूरा उनको। जब हम धीरे 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 जब हम बढ़ते गए, जो मैंने आपको एक्टिविटीज दिखाई, हमने प्लान किया कि बहुत ज्यादा नहीं बताना है, क्योंकि हमारा सिस्टम अभी इस तरह का नहीं है कि हम एकदम से बहुत बड़ी चीजें उनको दे दें। तो उनको जोड़ने के लिए धीरे धीरे सर्किट कैसे बनता है, हमारे तो कई बच्चे इससे एलईडी भी ग्लो नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें हमें ज्यादा टाइम लगा सिखाने के लिए। पर जब जिस दिन ये रोबोटिक्स गाड़ी बनाई इन्होंने, दे आर वेरी हैप्पी। इसमें ऑर्डिनो और जो इसका पूरा पीबी सर्किट था वो नो डाउट सर लोगों ने हेल्प की, अकेले बच्चों ने नहीं किया है, लेकिन दे आर रियली वेरी हैप्पी कि दे हैव मेड समथिंग एंड वी आर ट्राइंग देम टू सेंड देम टू फॉर सम कॉम्पिटिशंस लाइक दैट। तो इस तरह से काम हम कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि जो मैं बात कर रही हूँ ये हर स्कूल तक पहुंचाना अभी बहुत मुश्किल है। ये जो पिक्चर्स अब आपके सामने आई है, ये कर्टिन यूनिवर्सिटी के साथ हमने किया था। मैम, इस तरह की चीजें क्या आप यूट्यूब पर भी शेयर करते हैं? यूट्यूब पे हमारे कॉलेज का तो नहीं है सर कुछ, पर इस हम जो तरह की काम, चीजें देखिए, आम पब्लिक को बेसिकली सबका ऑब्जेक्टिव यही है कि हर व्यक्ति तक इस तरह की चीजें पहुंचे, हर बच्चे बिल्कुल तक। सर, तो इस दिखती तरह की चीजें, छोटी है सर ये चीजें, लेकिन छोटी नहीं है। हमें लगता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको रियल प्लेटफॉर्म में बच्चों के साथ करते हैं, जैसे हम आपको बताएं सर, हमने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने एक ब्लॉक अडॉप्ट किया, इच्छावर ब्लॉक। जी वहां के स्कूल्स जो हमने अडॉप्ट किए, वहां पे भी जाके हम उन्हें ये एक्टिविटी कराते हैं। पूरे टाइम तो नहीं जा पाते, लेकिन 10 दिन हमने गए वहां पे, हम इसको करवा के आए, बच्चों ने बनाया। आपका आइडिया अच्छा है, अगर हमें इसका कुछ आगे मिलता है तो हम इसे यूट्यूब पे जरूर अपलोड करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड मैंने हमारे। देखा है कि हम लोगों के पास, हम लोग बात तो करते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है वो उसको छिपा के रखना चाहता है, नहीं नहीं, इसलिए हम बिल्कुल लोग नहीं उतना सर, आगे ऐसा नहीं है। नहीं। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक हाँ जनरल बता रहा हूँ। हाँ, इसीलिए हम लोग उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक्चुअली थैंक वी यू आर मैडम। नॉट प्रमोटिंग, स्प्रेड जी जितना करेंगे उतना पहुंचेगा। जी जी तो मुझे ये मौका मिला तो इसलिए मैं आपसे सब वो शेयर कर रही हूँ जो हम करते हैं, पिक्चर्स जी। के फॉर्म में ही सही, बट आई एम ट्राइंग टू शेयर एवरीथिंग विच आई एम हैविंग। थैंक यू मैम। ये सर जो आप ये देख रहे हैं, ये कर्टिन यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ स्टेम पे काम किया था। आप देख रहे होंगे सब बच्चों के टी शर्ट पे स्टेमिनिस्ट लिखा हुआ है, बीच में मैं भी बैठी हुई हूँ। तो ये जब हुआ था तो इसका पूरा, मैं कोऑर्डिनेटर थी इस प्रोग्राम की, तो आई हैव अरेंज्ड एवरीथिंग। बट इसको जब हम सोच रहे थे क्या होगा, कैसे होगा, कब करेंगे, तो व्हाट वी डिड, वी गिव
first phase of training to our these students, which are BSc B.Ed 5th semester students. We have chosen 5th semester of RI Institute. We have given 1 week training to these students, and after that we have been moved to our DM school students. These college students now gave training to these school students. So we all have been involved, teachers involved, student teacher involved, and the student involved. The 3 activities they have given, and I am telling you in assignment you have to you have to perform one of this activity. I will share you the video, और आप सबको कुछ बना के अपना वीडियो बना के शेयर करना है. आज का असाइनमेंट यही है, मैं आपको लिंक भेज दूंगी क्या करना है. तो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है ये वाली जो विगल बॉट एक्टिविटी दिख रही है. विगल बॉट एक्टिविटी में 9 वोल्ट का बैटरी दिया था, एक फैन दिया था, ग्लास दिए थे, और नीचे जो है 4 मार्कर लगे हुए हैं. अगर आप इसका जब वीडियो देखेंगे तो जैसे इसकी मोटर ऑन होती है, ये चलते तो अलग अलग डिजाइन बनाता है पेपर पे. जो पेपर रखे हुए हैं ना, इस पे डिजाइन बनी हुई है जो ये चलते हुए बना रहा है. और ऊपर बच्चों को एक तरह से स्टेम नहीं कहना चाहिए, इट्स स्टीम. बच्चों का आर्ट भी आ गया इसमें, सबने अपनी अपनी तरह से इसको सजाया. ये क्लास 8 के साथ किया था हमने. ये दूसरी एक्टिविटी है कैटापल्ट एक्टिविटी, जिसमें हमने आइसक्रीम स्टिक्स यूज किए. इट्स नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, कोई खर्चा नहीं आया. कैटापल्ट एक्टिविटी जिसमें एक स्पून यूज करके किसकी पेपर बॉल कितनी दूर जा रही है. तो इसमें रबर बैंड यूज हुए हैं, और ये आपका आइसक्रीम स्टिक्स यूज हुए, और एक स्पून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. इसका जो डिजाइन है उस तरह से रबर लगा के आपको बनाना है उतने स्टिक्स यूज करके, और कितना स्पून से किसका कितना दूर जा रहा है वो फिर हम मेजर करते हैं. जिसका सबसे ज्यादा गया उस बच्चे को हमने थोड़े से रिवॉर्ड भी दिए, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स को. तीसरी एक्टिविटी हमने जो की थी ये है पाइपलाइन एक्टिविटी, कि इसमें आपको एक एंड से बॉल डालनी है, कॉर्क बॉल, और वो सेकेंड एंड पे आनी चाहिए. उसके 2-3 कंडीशन थे कि कहाँ पे एंगल कितना होगा, उस हिसाब से आपको उसको बनाना था. 3 कंडीशन थी. तो इस तरह से बच्चों ने ये पाइपलाइन एक्टिविटी की. इसका भी वीडियो अवेलेबल है जो हम, तो इसमें हम कुछ नहीं, पहले हमने वीडियो दिया, उस एक्टिविटी के बारे में बताया, फिर उसके कॉन्सेप्ट को बताया, और उन्हें एक मौका दिया. कोई टाइम लिमिट नहीं दी. टाइम लिमिट इसीलिए नहीं दी क्योंकि बच्चों के लिए भी पहली बार था, तो वो सीख रहे थे. The purpose is to involve them in learning. जितना हम involve होंगे mentally, physically, with all our senses, learning will be effective and good. तो इसका पर्पस यही था. तो ये एक्टिविटी करने में हमें बहुत अच्छा लगा. नो डाउट ये समझ में आया कि जो क्लास हम 40 मिनट लेके आ जाते हैं, जिसमें हम पढ़ा भी देते हैं बिना ये सोचे कि बच्चे ने कितना गेन किया. When we conducted this activity in the classroom, हमें पता लगा कि बहुत टाइम चाहिए बच्चे को समझने के लिए. वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन आवर ब्रेन्स, बट आवर हैंड्स आर वेरी मच पुअर इन द स्किल. तो उस स्किल के लिए, हैंड और माइंड का कोऑर्डिनेशन के लिए, वी नीड टू गिव टाइम टू देम. वी नीड टू अंडरस्टैंड देम कि कैसे वो एक्सप्लोर करे, कैसे वो इस चीज को समझे. इस तरह से हम लैब्स में परफॉर्म करते हैं. ये हमारे टीचर्स, हमने कहा हमने कॉलेज स्टूडेंट्स को भी परफॉर्म कराया, छोटे बच्चों को स्कूल को भी कराया. एंड दीज आर आवर इन सर्विस टीचर्स हु आर इन मेकर स्पेस लैब, एंड वी आर गिविंग देम अ ट्रेनिंग. For 1 week they used to come from western region states, state government schools, and we give in maker space kahiye ya physics mein kahiye. Along with that, I forgot to put the pictures of my STEAM park. We have one STEAM park at our Regional Institute of Education, in which all the items, whatever we have in the STEAM park, have been developed in the RI only, because you all know in government sector we are not allowed to purchase directly items, so we are purchasing raw items. Our team from Alirajpur is there who aate hain college mein. We gave them design and they develop those items, and around 40 to 45 items are there in our STEAM park, which all are working in position. Aisa nahi hai ki koi work nahi, all are working models. And every year we used to call 10 schools, different 10 schools, government school students, and keep them for a week from morning to evening and explain all the models so that they can play with those models and learn science easily using STEM. So now, first, earlier it was Science Park, then it becomes STEM Park. And when the ambassador of Crivet came, he gave the name STEAM Park. So now we have STEAM Park at our institute. I really forgot to put those pictures of our STEAM Park.
I think if you'll visit our site, at site there are many pictures uploaded. So we have been discussed all these things. I'm not going to discuss everything which has been discussed. What I want to now say, this is यहाँ से शुरू करते हैं. So what are the initiatives by the government of India to strengthen STEM education? ये अभी तक तो मैंने वो बताया जो हम करते हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है बहुत कोशिश कर रही है, हमें अपॉर्चुनिटीज भी दे रही है कि कैसे हम STEM को आगे बढ़ा सके, सब तक पहुंचा सके. As we know, girls are not that much interested in performing all these skill activities. So in October 2020, the DST and started in collaboration with IBM to improve STEM opportunities for girls, and this collaboration was meant to scale up two initiatives, that is Vigyan Jyoti and Vigyan Prasar. कैसे हम बच्चों को आगे लेके आ सकें. और आपने अब अगर अभी ये पिक्चर्स देखे होंगे, कहाँ गया ये देखिए, our team is of girls only, we have not taken boys, don't take it otherwise, but from college only we have taken only girls कि ये लोग कैसे कर सकते हैं, because boys are actively doing, हमें पता था, तो we have chosen only girls to participate in this Curtin University program. तो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया हमारे बच्चों ने और सिखाया हमारे स्कूल के बच्चों को. तो इसीलिए ये जो एक है कि नहीं, लड़कियों के लिए प्रमोट करना जरूरी है, तो दिस इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ विज्ञान ज्योति एंड विज्ञान प्रसार, एंड it aims to foster scientific spirit in Indian youth actually. The second is the ATL. We all know the ATL, no doubt I can say ATL is a, क्या बोलूं मैं, इसके एक चमत्कार ही है हम सबके लिए कि बच्चों ने इतना कुछ उसमें वो बनाते हैं. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड अटल टिंकरिंग लैब. टिंकर मीन्स जुगाड़ करके कुछ बनाना, तो वो टिंकरिंग से कि वहां जो है उसी में से आपको बनाना है, कुछ अलग से नहीं मिलेगा, और इतनी चीजें निकल के आती हैं. बिकॉज वी हैव केप्ट 1 class 2 classes per week, तो वी आर सेंडिंग स्टूडेंट्स देयर, दे आर फ्री टू यूज एनीथिंग टू मेक अ स्पेस लैब, एंड दे आर डिजाइनिंग whatever they want with the objective. So ATL established with the objective to create workspace to empower our youth and to build innovative solutions for India's unique problems. And till date in India, we have 10,000 adult tinkering labs. If you are, if any participant, no doubt we all are, maybe you all are in higher education, but I request you to promote adult tinkering labs in the schools, because if you want a good stuff in your college, please promote this kind of things in schools, then only we will get good stuff in college. Because अगर स्कूल में कुछ सीखेंगे बच्चे तो हमारे पास अच्छे बच्चे आएंगे. So we have in total 10,000 adult tinkering labs in 722 districts, and mentors are about 5,800, and we are trying to reach adult tinkering labs to each and every schools. We are providing funds for that also. अगर आप वो फॉर्म भरते हैं 5 lakhs या 10 lakhs जो आपको मिलता है, उसको यूज करके आप लैब्स को सेटल कर सकते हैं. The another initiative is for National Initiative for School Education, which aims to improve STEM education. And we can say there are a number of ways to promote STEM education in India. One is to increase the STEM schools, and other is to provide scholarship and financial assistance for STEM students. So it's a really high time, peak time to introduce STEM education in India if we want to compete at global level. Benefits हो गए हैं. ये भी बात होगी. So as I am talking about teaching, if you want to teaching learning through STEM, we need to provide each learner how he can observe, how he can express, how he can discuss. We need to promote him to ask questions, critically think, and to analyze and to participate. So everything is in our control. If we want to give them experiential learning, we need to use contextual strategies which help them to relate it with real life experiences. So we are in the transformation phase. We have to look at the curriculum in a flexible way rather than looking at it in a rigid way. So what learning cycle to be? We all know 3H formula, that is head, heart and hand. तीनों का समावेश अगर होगा, that is cognitive domain, affective domain and psychomotor domain, definitely our learner will learn in a better way. So what learning framework should be? The learning framework must be like that, in which the curriculum, pedagogy and the assessment
which must cover the components of STEM. बात तो हम करते हैं, लेकिन जब तक असेसमेंट सिस्टम चेंज नहीं होगा, वी कांट change our outlook, because we are also focusing on the theoretical part more rather than on the practical part, because marks for theoretical area is more than the practical area. So what teaching process should we use? We need to use the teaching process which is in the CAPS formula. That is, the information which we are giving to our learner must be clear, accurate, brief, and specific, as our thought is really sensitive and receptive. So for that, we need to be well prepared, or I can say we need to follow PPT formula. That is, we need to plan first, then we have to prepare accordingly as per our learner and the time. So what kind of teacher we want? The first one or the second one? Obviously, the second one. Who, as I am saying, if we want to involve our learner, first we need to involve. We need to participate. Then only we can do the thing which we want from my students. So we have to design. We have to develop activities which involve students to explore actually. So it's our time. एक नया रोल निभाने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, if we want to really integrate STEM in our classroom. इसकी जरूरत नहीं. So what kind of learner? अगर इस second choice का learner चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें कुछ करना होगा, so that our learner can discover, retrieve, interpret, manage and share, so that he will be able to discover. तो अगर हम इतना करते हैं तो नो डाउट कुछ बच्चे, पूरे ना सही, एक अच्छा परसेंटेज हमारे बच्चों का निकल के आएगा जो आगे बढ़ेगा और इस देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा. STEM and society both are interrelated. If we use STEM in a good way, हमारे लिए बहुत अच्छा है. अगर हमने उसका मिसयूज किया तो आप देख रहे हैं जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो हो सकती. तो we have to accept and respect. If we can accept and respect, no doubt cohabitation अच्छा होगा, तो acceptability होगी, sustainable development होगा. We need to value methods. So STEM education is essential for India's future, and what I can say is we need to put effort together to help our coming generation be highly capable and, most importantly, STEMly workforce ready. Again, I am saying a long way to go. एक क्लास इधर है, एक क्लास इधर है. जब बैलेंस बन जाएगा तो शायद हम इस गैप को कम कर पाएंगे. तो लॉन्ग वे टू गो. हम जहां पर हैं सब लोग बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं. कभी रिमोट एरियाज में जाके देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट. दे डू नॉट हैव एनी फैसिलिटी, बट इवन दे वांट टू स्टडी. So how we can what we can contribute to the society, that is more important. Sitting at this place, how we can contribute. They want nothing from us, they just want education, help, how we can educate them in that circumstances, in what they are living actually. कहानी वही है, नए आइडियाज के साथ सोचना है, नया कुछ करना है. जैसे लिखा है, update yourself. It's a time to update ourselves. Then we can able to contribute something to the society and to the learners. And the secret of the education is respect the people. And every problem has two solutions: run away or participate, or I can say bhag lo and bhag lo. Choice is yours. And I can assure all of us want to be bhag lo, not bhag lo. We all want to participate in enhancing the teaching learning system, and teaching is a work of art. So change your attitude, change your thinking, change your behavior, and implement it for the betterment of education system. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for such an interesting session. And मैम क्योंकि यहाँ पे एक हमारे जितने भी सेशंस चल रहे हैं, क्योंकि टीचर्स हमारे हायर एजुकेशन के हैं, तो एक स्कूल एजुकेशन वाला पर्सपेक्टिव अभी तक मिसिंग था, जो कि आपने पूरा कंप्लीट किया और ये बताया कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी क्या चल रहा है, और हमें वहाँ लिंकेज बनाने की ज़रूरत है. जो स्टेम एजुकेशन की रेडीनेस है वो स्कूल लेवल से ही शुरू होगी. तभी जैसे कुछ इश्यूज डिस्कस हुए थे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, कि बच्चे स्कूल में साइंस लेने के बाद फिर हायर एजुकेशन में आके सब्जेक्ट भी चेंज कर लेते हैं. ठीक है, मतलब और इवन अंडर ग्रेजुएशन के बाद भी सब्जेक्ट चेंज होता है, MBA MCA की तरफ मूव आउट कर जाते हैं.
वहाँ पे भी एक चेंज आ जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारी मिसिंग लिंक्स थे जो आपने कंप्लीट किए, और इतनी सारी एक्टिविटीज़ और डेमोन्स्ट्रेशंस जो आपने डीआई एक्टिविटीज़ की बात करी, और राज सर का सजेशन भी आया कि हम उन्हें, आप लोगों ने जो इतना सब काम किया है वो हमें शेयर करना चाहिए डेफिनेटली। तो आप बल्कि यू आर पार्ट ऑफ एनसीईआरटी मैम, तो ये भी कर सकते हैं कि जो हम स्कूल लेवल के लिए चैनल्स बन रहे हैं पीएमई विद्या, तो आप ऐसी डीआईवाई एक्टिविटीज़ वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट से जुड़ी थी, तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, वी कैन डू दैट। और अरविंद गुप्ता सर का भी मैंने कई जगह बोला है, उन्होंने भी ऐसी बहुत शॉर्ट डीआईवाई एक्टिविटीज़ की हुई हैं, वो भी बहुत नाइसली उनको भी कंट्रीब्यूट किया हुआ चैनल में प्ले होती हैं, तो ताकि वो अगेन जाए पब्लिक प्लेटफॉर्म में, दैट इज़ अ नीड। और आपने असाइनमेंट के लिए, अभी आप असाइनमेंट किस तरह से देना चाहते हैं वो शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में। अब मैं इनवाइट करूँगी हमारे क्वेश्चंस के लिए। मैम कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू, क्वेश्चंस आर इनवाइटेड प्लीज, हाँ, if क्वेश्चंस आर anybody इनवाइटेड, wants। पार्टिसिपेंट्स कैन आस्क देयर क्वेरीज। मैम एक सजेशन मेरा है जी। कि जैसे अगर कोई इस तरह का कंटेंट्स हो, उसको आप ऑफिशियली बना रहे हैं फिर यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो उसका लिंक इस तरह के सेंटर को, जैसे आईयूसीटी आपका एक बनारस से करा रहे श्योर हैं, सर, श्योर सर। तो आपका एक ग्रुप होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने 4-5 साल पहले एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे जब भी कोई नई एक्टिविटी होती है वो पूरे ग्रुप को भेजते हैं, तो कोई इंटरेस्टेड होगा तो उससे कुछ आगे करेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। तो इस श्योर। तरह की चीजें होनी And चाहिए we share ताकि the links to दीप्ति मैडम और कुशाग्री मैडम, एज जो भी है, मैं वो शेयर कर देंगे ग्रुप में आपके, है ना? ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? आई होप सैटरडे तो छुट्टी तो नहीं मना रहे सब लोग, लॉग इन करके और रेस्ट कर रहे हैं। हमारे बहुत पार्टिसिपेंट बहुत इंटरेक्टिव रहते थे, राखी मैम, निधि मैम। एनी क्वेरी? नहीं, बिल्कुल यहीं पर हैं और सुना मैम को, और तुमने ऑलरेडी हमारी ये बात कह दी है कि पूरे सेशंस में स्कूल पर्सपेक्टिव में अभी तक कोई सेशन नहीं हो रहा था, और मैडम ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, और मुझे लगा जो मेन एसेंस था ना स्टेम का, कि कैसे इंटीग्रेशन करना है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को, तो वो आज के सेशन में ज़्यादा क्लियर हुआ है। इससे पहले वो बहुत थ्योरेटिकल था, ठीक है, हम लोग उस एज में या उस एक्सपीरियंस के साथ है कि somehow we were able to understand those concepts also, but मैम ने ना बिल्कुल जिसे कहते हैं ABCD से बात शुरू करके पूरा पैराग्राफ लिखना सिखाया है। So और ये कहीं ना कहीं एजुकेशन पर्सपेक्टिव था, तो मैम we are thankful to you that you have presented very well with all demonstration, with all practical demonstrations. Thank you so much. Thank you. Actually, if you want to bring readiness, na, as we are from higher education, we have to develop this readiness from the early age. Then only we will able to perform something with higher education students, because these are very small things for higher education students. But when we are performing this, as जैसे मैंने बताया, जब हम कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ किया, उन्होंने कभी स्कूल में परफॉर्म नहीं किया, तो उन्हें भी समझने में इसको बहुत टाइम लगा। I agree with you, हाँ, मैम। और अब जब हम स्कूल से शुरू कर रहे हैं और अब हम बच्चों से बात करते हैं, जिन बच्चों पे अभी मैं काम कर रही हूँ, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आ रही होने से कि वी हैव वन लैब स्कूल विद अस, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट स्कूल टिल आवर हायर एजुकेशन स्टूडेंट। तो हमें वो गैप समझ में आ जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करें और बच्चों पे कितना काम करने की जरूरत है। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह मतलब एग्री कर रही हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि स्कूल एजुकेशन में हम जितना ज्यादा स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देंगे, वो उतना ही मतलब इंक्विजिट नेचर का बनेगा, और उसे लगेगा कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ऑल दिस थिंग्स इन माय लाइफ, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स, ऑल लर्नर्स आर हैविंग वेरी बिग ड्रीम्स, एंड इफ वो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उनकी स्टार्टिंग वहां से होनी चाहिए। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स आवर फॉल्ट एक्चुअली, वी आर नॉट गिविंग देम enough platforms. हाँ, Yes. थैंक यू मैम। यहाँ पे मैम मैं सबको सजेशन में ये भी, मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि सपोज हमारे जो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स आए हैं, उन्होंने अपने स्कूल टाइम पे सब कुछ ना भी किया हो, तो यहाँ पे कई टीचर्स के मन में हो सकता है सवाल आ रहा हो कि हम अब तो हमारे पास ग्रेजुएशन करने आए हैं बच्चे, तो हम कैसे उसको वापस से लेके जाएं, वो तो लेके नहीं जा सकते। तो वहाँ वी कैन हैव अ काइंड ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हम कहते हैं, जो बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा है, वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल्स में जाके नियर बाय स्कूल के साथ कोलैबोरेट करके, अगर उनके पास नहीं है तो वहाँ पर वो जाकर उन स्कूल स्टूडेंट्स को भी ओरिएंट करें,
जैसे आपने इतने सारे आइडियाज दिए, तो उनका भी अगर बेसिक्स वीक है किसी कॉन्सेप्चुअल पार्ट में, तो वो जाकर वहाँ से लिंकअप होके, और हमारी एनईपी भी कह रही है स्कूल और हायर एजुकेशन का लिंकेज होना चाहिए, इस पे एक पर्टिकुलर फोकस पेपर भी बना है, शायद एनसीईआरटी का बनेगा, तो वहाँ पर वो लिंकेज भी मिसिंग होगा आगे जाके। अगर हम बोलते हैं जरूरी नहीं कि हायर एजुकेशन के स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ एक एक्सचेंज प्रोग्राम और मैंने ये भी सुना है कि अब तो बहुत कंपल्सरी हो गया, अगर आप फॉरेन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक सोशल या पार्ट में एक्टिव रहना है, कोई सर्टिफिकेट अर्न करना है, किसी एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करना है, तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी फायदा मिलेगा अगर वो स्कूल्स में जाके ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम करें और उसको अपने सीवी में ऐड करें, और उनको वो एक्टिविटीज परफॉर्म कराएं, खुद के बेसिक्स भी उनके क्लियर हो सकते हैं अगर उन्होंने अपने टाइम में ना किया हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चन? मनीषा मैम, मनीषा नमस्कार सॉरी, मैम। मनीषा मैम सॉरी। जी जी कल्पना मैम नमस्कार। नमस्कार। मैं भी भोपाल से ही हूँ और हमने और आपने मिलके बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं उसमें। मैडम कैमरा ऑन कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, एक्चुअली मैं ऑन द वे हूँ, शायद थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करती हूँ जैसे ही कनेक्ट हो पाता है मैं कर पाती हूँ, जी शायद अब हो जाना चाहिए। नहीं, मैं आपको समझ याद आ गया मुझे। हम लोग आई ने थिंक यू आर इन सैम कॉलेज, राइट? यस मैम, हम हाँ। एनसीईआरटी प्रोजेक्ट्स में हम लोग थे। हाँ, बस एग्री हाँ। जी बस मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक जो नया एक इनपुट चाहिए, वो ये है कि इसमें हम जो सैम में जो भी वीडियोस ले रहे हैं, ओपन एक्सेस ले रहे हैं, तो इसमें क्या हमें कुछ मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं क्या कि हम कोई भी वीडियोस ले सकते हैं, या कुछ क्रिएटिव कॉमन्स के तहत, या कुछ उसमें हमें एक्नॉलेज करना होता है, या कुछ टेक्निकल इशू होते हैं, या हम किसी को भी लेकर उस पर अपना काम कर सकते हैं? देखिए, जो वीडियो हम ले रहे हैं उसका हम यूज किस में कर रहे हैं, हम उसको अपना नाम तो नहीं ले रहे हैं। हमने जो वीडियो लिया है चाहे इन एक्टिविटीज के लिए, दैट इज यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। जी, उसका हमने कहीं मिस यू, और उसका हम बकायदा दे रहे हैं, हमने यहाँ से लिया है। अगर हम उसे लिख रहे हैं, अगर आपको मैं अपना मॉड्यूल दिखाऊं तो उसमें जी। लिखा हुआ है सोर्स क्या है, Source। क्रेडिट नहीं लेना है हमें उसका, हम यूज कर सकते हैं। एंड दोज वीडियोज आर देयर ओनली टू यूज दैट ना। उसको देख के फिर वो पर्पस क्या है, अगर उसका हम यूज ही नहीं कर पा रहे और हम उसका नाम अपना उसमें नहीं दे रहे ना, हम क्रेडिट उन्हीं का रहेगा। एंड वी कैन यूज एनी वीडियो बिकॉज इट इज यूज फॉर लर्निंग। वंडरफुल, रियली हैट्स ऑफ। आपका तो खैर बहुत जाना पहचाना नाम है इस उसमें, आप बहुत बेहतर मोटिवेटर भी हैं और बहुत उम्दा काम करा है आपने। और बेसिकली फिजिक्स में है तो वो हमारी और आपकी रुचि भी बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्लेटफॉर्म पर भी आपसे मुलाकात हो गई। आपको थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके मैम, तो अभी हमारे पास अभी और कोई सवाल नहीं है। आप अपना असाइनमेंट मैम बता दीजिए क्या करना है। मैडम असाइनमेंट आई विल सेंड यू ऑन योर व्हाट्सएप, राइट? लोग कभी कोई प्रोग्राम कराएंगे जी तो आपसे हम मदद लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैम की ईमेल आईडी हम शेयर कर देंगे चैट पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो अगेन मैं भी मैम को सुबह बोल रही थी, हम जरूर आपको ऑफलाइन मंगाए थे और हमारा पहला ऑनलाइन इवेंट है, नहीं तो हम यही कोशिश करते हैं कि इंटरेक्शन फेस टू फेस हो, और ये एक्टिविटीज जो मैम ने दिखाई वो तो वंडरफुल थी। तो थैंक यू मैम वंस अगेन फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड joining the online session. And I request all the participants, as I have told you, the assignment is जो मैं Wigglebot पाइपलाइन एक्टिविटी और कैटापल्ट की एक्टिविटी का लिंक शेयर करूंगी। कोई एक एक्टिविटी आपको बनानी है, मैडम आपको 1 या 2 दिन देंगी कि आप ज्यादा सामान उसमें नहीं चाहिए, उसका 5 मिनट का वीडियो बना के आप शेयर करेंगे, यही आपका असाइनमेंट है और कोई असाइनमेंट नहीं है। वो तीनों लिंक मैं मैडम के व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगी अभी 5-10 मिनट में। मैडम विल पोस्ट यू इन योर ग्रुप, ओके? तो मैं चाहूंगी प्लीज करके देखिए कि आपको जो छोटा सा लग रहा था उसमें कितना टाइम लगता है, प्लीज करके देखिएगा। थैंक यू। नमस्कार सभी को, नमस्कार। Okay, now we'll have a 15 minutes break. हम लोग 11